कभी कभी नेट प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो उसको क्लिप को छोड़ो, नई क्लिप सेव करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 2 में पेज 903 है ना। तो वी गॉट C1 कर्व था, इट वाज कमिंग RT इज इक्वल टू TI प्लस TJ एंड C2 कर्व वाज RT। ये सब फैक्टर फंक्शंस हैं, इसलिए ऊपर एरो लगा रहा हूँ। I प्लस J प्लस TK, I J के आर यूनिट वेक्टर्स, अंडरस्टूड, they are unit vector. T is lying between 0 to 1. We got V, so mod V was, इसका mod V आ रहा है √2 and here mod V is 1 है ना। V क्या होता है dr by dt, तो mod लेंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे इसका। and your curve was this, if we are reaching through this point 1 comma 1 comma 1 through two curves C1 and C2. This is 1 1 0, this is your origin x y z axis. So here this C1 union C2 f of x y z ds, its value will be C1 f of x y z ds plus C2 f of x y z ds. इसको by the formula I can write, see in terms of t, so t is 0 to 1, f of RT के along कर रहे हैं, C1 is RT कर, so t 0 √2 dt plus C2 is 0 to 1, and if it is ijk, तो xt is 1 1 t and dt. ओके, तो एफ टी टी 0 रखेंगे कर्व में, कर्व फंक्शन में, फंक्शन वाज गिवन टू यू कि वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन x minus 3y square plus z, it was the function. So you put t 0, so it will be 0 to 1 t minus 3t square, as z is 0, √2 you can take outside dt plus यहाँ पे ये 1 था, mod भी 1 था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। This is also 0 to 1 f 1 1 t, so 1 1 t when you put here, so 1 minus 3 plus t and 1 into dt, and you can integrate this, simple integration. When you integrate, it is coming minus √2 by 2 minus 3 by 2. So here the point is that when you are differentiating along different path, the integration is different. पहले इसी पॉइंट पे हम रीच कर रहे थे बाय द पाथ सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी along C, this value was 0, है ना। So it means what, that this integration, this is path independent, है ना, path पर डिपेंड नहीं कर रहा है। If you are changing the path, you are getting the different values. क्यों भाई, is it observed? You can observe this quite clear from this, Yes, sir. है ना, कि integration is you can say that it is not, it is depending on the path. If we are changing the paths, you are getting the different values. So that means it depend on the path. If you are reaching a point from different paths, it will give you different values. So line integral depends on the path. However, not all the case. There are some functions where it will be independent of the path and you will be getting the same value. No, functions के लिए वो different है जो आगे आपके आएगा. But in general, it is path depending. So ये concept था इसमें जो दिखाया आपने. Then there are some problems from the exercise 16.1.
पेज 905 पे, which you can do by yourself. 3 प्रॉब्लम्स हैं होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स 9, 11, 13, पेज 906 पे। सिमिलर टाइप प्रॉब्लम्स है, फंक्शन गिवन है आपको, एक कर्व गिवन है और पॉइंट्स गिवन है, तो यू हैव टू फाइंड द integration over the given curve. So first thing is you have to write the equation of a curve in parametric form. किसी भी कर्व की बुक शेयर कर पैरामीट्रिक दीजिएगा। फॉर्म लिखेंगे। हैं ये बुक तो आपके पास है ना बुक ऑलरेडी, बुक की कॉपी है आपके पास, उसमें से देख लीजिएगा पेज 905 पे। ये वाला चैप्टर नहीं भेजा आपने? ये वाला नहीं है सर, 15 अच्छा तक ये आ है। रहा, अच्छा ठीक है ठीक है, ये यूनिट 4 आपका मैं भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ ठीक, व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज डाल दिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा ना, आप भूल जाओ। नेक्स्ट इज 16.2। 16.1 में हमने देखा हाउ टू टेक लाइन इंटीग्रल। नाउ 16.2 में वी विल फाइंड वर्क, circulation and flux. How we can find work done using this line integral? If we are moving with an object from one point to another point along a curve, then what is the work done? How much circulation? If your velocity, it is a fluid velocity, fluid is moving, then what is the circulation and flux? How much the flux? Flux means flow. So what is the flow of the water? You can find per rate of flow. Rate of flow, if water is any water or any liquid is moving, what is the rate of flow? These things we can find. Okay, so first thing we use a vector field. Vector field, because these things are direction dependent. Work, circulation, flux, है ना, in which direction the things are going, where we are applying our force. So these are direction dependent, you know, vector quantities. So what is vector field? Vector field is a function. It is a function. Definition लिख रहा हूँ vector field की, that assigns a vector to each point in its domain. In its domain. Okay? तो क्या है वेक्टर फील्ड? क्या है? एक फंक्शन है ये। आपके पास अगर कोई डोमेन में कुछ पॉइंट्स है, सपोज यू हैव सम डोमेन लाइक दिस, यहाँ पर पॉइंट्स है बहुत सारे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने वेक्टर फील्ड इस पे अप्लाई करा, वेक्टर फील्ड करा, तो क्या होगा, इन सब पॉइंट्स को क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या कर देगा, असाइन अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक डायरेक्शन दे देगा इन पॉइंट्स को, इस तरीके से। तो वेक्टर फाइल्ड इज अ फंक्शन, इट्स अ मैप, यू कैन से। अगर कोई भी पॉइंट आप डोमेन का लें, उन्हें चेंज कर देगा वेक्टर में, एक डायरेक्शन दे देगा, दे विल बी मूविंग इन अ डायरेक्शन। इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना 3 डायमेंशन में, तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको वेक्टर फील्ड को, इट्स अ फंक्शन, सपोज एक्स वाई जेड हमने लिए, तो ये क्या करेगा, इट विल चेंज इनटू अ वेक्टर। तो हाउ आई विल राइट, आई कैन राइट एम एक्स वाई जेड आई प्लस एन एक्स वाई जेड जे प्लस पी एक्स वाई जेड के, if I am taking a point in the space, तो what will happen, ये फंक्शन अप्लाई हुआ इस पे, है ना, 3 डायमेंशन में, and it will change the points in a vector quantity. So this field is continuous if the components m and p are continuous. It is differentiable, it is these components are differentiable. तो ये जो वेक्टर फील्ड है आपकी, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसके कंपोनेंट्स पे। अगर कंपोनेंट्स कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगी, और अगर डिफरेंशिएबल है डिफरेंशियल होगी। ठीक है, इसने क्या करा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर दिया। देखो ये, तो ये अगर मैं R3 में ले लूंगा, तो वेक्टर फील्ड क्या, इट्स अ फंक्शन जो किसी भी पॉइंट को क्या चेंज करके क्या बना देगा, एक
वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। वेक्टर क्वांटिटी अगर सपोज नोटेशन ले लें हम, इस वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ वी से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, मान लो वीपी, पी का अलग पॉइंट, जो भी पॉइंट लें उसको वीपी बना देगा। एक्स वाई जेड लिया तो वेक्टर बना देगा। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, अगर कोई आपके पास कर्व है आर टी, सपोज आर टी कर्व है, तो वेक्टर फील्ड आर टी आपके पास क्या होता है, ये ऑलरेडी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एफ टी आई प्लस जी टी जे प्लस एच टी के। दिस इज ऑलरेडी अ वेक्टर क्वांटिटी इफ वी राइट इन अ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या करती है, कर्व को आपके वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देती है। तो दिस पैरामीट्रिक फॉर्म यू कैन से कैन वर्क एज अ वेक्टर फील्ड। ऐसे ग्रेडियंट फील्ड है, ग्रेडियंट फील्ड क्या था, ग्रेडियंट बताइए, याद है? ग्रेडियंट का कंसेप्ट हमने यूज किया है, एप्लीकेशन देखे थे बहुत सारे इन डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस। क्या थी ग्रेडियंट, इफ यू हैव अ फंक्शन एफ, ग्रेडियंट फील्ड यहाँ लिख देते हैं। फील्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ग्रेडियंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी इफ यू हैव अ फंक्शन एफ, डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स वाई जेड सपोज, है ना। देन व्हाट इज द ग्रेडियंट, डेल एफ इज हाउ मच, याद है, भूल गए, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई प्लस एलएफ ओवर प्लस डेल एफ ओवर डेल, ये तो था ग्रेडियंट। इसका यूज कर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला है ना, इक्वेशंस निकाली थी बहुत सारी, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड सो ऑन। सो दैट इज ग्रेडियंट डेल एफ। तो ये क्या होता है, इट इज आल्सो वेक्टर। तो इसको मैं ग्रेडियंट फील्ड बोल सकता हूँ। क्या हो रहा है, ये किसी फंक्शन पे अप्लाइड किया हमने, इट इज गिविंग यू दिस वेक्टर क्वांटिटी। ये तो है ग्रेडियंट, क्या है, इट इज ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन, अगर R3 का है तो R3 एंड गिविंग यू दिस डेल एफ। डेल एफ क्या है ये, so it's also a vector field, it's named gradient field, है ना। क्या होता है एट ईच पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पे ग्रेडियंट फील्ड इज क्या है, ग्रेडियंट फील्ड गिव्स अ वेक्टर एट ईच पॉइंट x y z, the gradient field gives a vector, क्या देता है वेक्टर, पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, ग्रेटेस्ट इंक्रीज ऑफ f, है ना। ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन f, याद है, duf डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u एट अ पॉइंट p। इसका फॉर्मूला क्या आया था, डेल एफ डॉट यू। ये कितना था, मॉड ऑफ डेल एफ डॉट यू आता था निकल के ना, क्योंकि दैट इज व्हाट, ये क्या होगा, मॉड ऑफ डेल इंटू यू इंटू कॉस थीटा, यू इज अ यूनिट वेक्टर। तो व्हाट इज द इंक्रीज, मोस्ट रैपिड इंक्रीज कब होगा, जब थीटा कितना बताया था, 0, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट थीटा 0। तो इंक्रीजिंग 0 का मतलब क्या हुआ कि इफ आपका फंक्शन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ, देन इट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो क्या करता है ग्रेडियंट वेक्टर, हर पॉइंट को एक डायरेक्शन दे देगा, क्या डायरेक्शन होगी, ग्रेटेस्ट इंक्रीज की, है ना, मोस्ट रैपिडली मूविंग फास्ट, चेंजिंग फास्ट, क्या लिखते थे वर्ड हमसे, मोस्ट रैपिडली
changing most rapidly in the direction of f, that is greatest increase in f. So these all are called vector fields. Gradient field, electric field, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर कुछ पॉइंट्स है वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दीजिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ और फिर डायरेक्शन मिल जाती है, फिर हर पॉइंट को एक वेक्टर से असाइन कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव लाइन इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड। लाइन इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स। अभी 16.1 में हमने क्या किया था, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन था वो, एफ एक्स वाई जेड वाज एनी फंक्शन। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड्स, अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड गिवन है, सपोज एफ इज अ वेक्टर फील्ड एम एक्स वाई जेड आई, तो वेक्टर फील्ड रूट से मैंने क्या बताई, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अगर R3 पे ले रहे हैं स्पेस पे, एम एक्स वाई जेड आई प्लस एन एक्स वाई जेड जे प्लस पी एक्स वाई जेड की, सपोज इट इज एनी वेक्टर फील्ड। जैसे ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड आपका ये था, क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही तो होगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो सम फंक्शन को एम लिख दिया, एम एक्स वाई जेड आई एन एक्स वाई जेड जे, एंड सपोज दिस इज फंक्शन पी एक्स वाई जेड के। तो एनी वेक्टर फील्ड हमने एफ से नोट कर दिया, एफ का मतलब एफ एक्स वाई जेड, सपोज एंड इट हैज कंटिन्यूअस कंपोनेंट्स है, ओके, देन एफ बी एनी वेक्टर फील्ड विद continuous component, M and P they calls components defined along a curve C parameterized by RT। C कर्व के along डिफाइंड है, जो हम C कर्व को पैरामीटराइज कर रहे हैं बाई RT, क्योंकि when you will find a line integral you have a curve also, है ना, then the line integral of this vector field f along C के along is given by this formula, f dot t ds। this will give you t क्या है यहाँ पर, where t is the tangent, unit tangent vector, और t की वैल्यू क्या है, अगर ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो क्या होगा, t is what, t को आई कैन राइट dr over ds, ओके, डॉट ds, और dr over ds को क्या लिख सकते हो, c f dot dr। so this is the formula for differentiating vector field, where this t you can write t is a unit tangent vector, किसमें, along the path, to the path। आपका अगर ये कोई पाथ है, ये RT है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, ये T होगा, और यहाँ पर आपने क्या किया, कोई फंक्शन f अप्लाई किया हुआ है, तो f डॉट टी डी एस विल गिव यू द वैल्यू, f फंक्शन है यहाँ पर कोई वेक्टर फील्ड जो है f, so f डॉट टी डी एस, ओके, दिस विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, f डॉट डी आर। ये जो फॉर्मूला था अभी आपका एफ एक्स वाई जेड डी एस, ये कब था, व्हेन यू हैव एनी फंक्शन, यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड नहीं था एफ एक्स वाई जेड, है ना, कुछ फंक्शन गिवन था इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपको वेक्टर फील्ड इस फॉर्म में गिवन है वेक्टर क्वांटिटी में, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 911, evaluate
f डॉट dr, इसे एवेल्युएट करना है, f डॉट dr वेयर c लगा हुआ है, इसका मतलब इट इज अ लाइन इंटीग्रल वेयर f x y z is given to you zi plus x y j minus y square k along the curve c is given rt is equal to t square I plus tj plus under root t k एंड टी पे लिमिट गिवन है 0 to 1। ठीक है, आपके आज भाई 5 बजे एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, टाइम कम है इसलिए बता दे रहा हूँ, क्लास ऑफ हो जाएगी तुमसे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। आई विल सर कंटिन्यू 8 विद ठीक है 5 बजे आज। सो फर्स्ट थिंग आई सर विल 8 PM में फ्री नहीं है सर 8 बजे बहुत लेट हो जाएगा ना, और बच्चे फ्री होंगे। सो एफ ऑफ आर, जो लोग फ्री नहीं है 5 बजे रिकॉर्डिंग देख लिए, डिस्कस कर ले मुझसे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ आप लोगों की। ठीक है, ओके सर। हाँ। सो एफ ऑफ आर टी वी कैन फाइंड, अब आर है ना, पहले हम एफ ऑफ आर टी निकालेंगे, मीन्स इस कर्व को सेटिस्फाई कराएंगे हेयर। तो हेयर व्हाट यू विल टेक, एक्स इज जेड इज हाउ मच, रूट टी, so root t I x y is how much, x y t cube j and minus t square k, so formula will become now, so I want to find f dot dr, f dot d